Yes, good afternoon, Arjun. Good afternoon. Yes, good afternoon, guys. Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Download the Excel sheet that I shared with you all and keep it handy because on that Excel sheet we'll be doing the practice. So be ready with the Excel sheet. Yes, good afternoon. Those who just joined, download the Excel sheet that I shared on the group and keep it handy. अपने सिस्टम पे उसी एक्सेल शीट को आप ओपन कर लीजिए. Yes, good afternoon all. And how many of you submitted the assignment of Google form? Very few students submitted the assignment and I know the names. What about others? Yes, what about others? बाकी ने क्यों नहीं किया? It means समझ नहीं आया. कुछ ना कुछ तो रीजन है. समझ नहीं आया तभी नहीं किया.
Because if you learn something, there is always a curiosity to try it on your end. हमेशा क्यूरोसिटी रहेगी सीखने के बाद तो कि एटलीस्ट हम ट्राई करें कैसे बनता है गूगल फॉर्म, व्हाट ऑल आर द फीचर्स आर देयर, हाउ टू इंसर्ट इमेज, हाउ टू इंसर्ट वीडियो. Yes, if you genuinely learn something, there is a curiosity to try it from your end. Yes, so those who not yet submitted, you have today's time also. Please submit it and download the Excel sheet that I shared with you all and keep it handy because we'll be doing the exercise on the same Excel sheet. Quickly. Yes, I hope everybody downloaded the Excel sheet. Yes, Arja, Khushi, Sanket, Nishant, Ankur, Abhinay. Yes, download the Excel sheet. And in case you have any doubt in the last two sessions about Google Form, you can ask. Yes, any doubt? Anybody is having any doubt? कि ट्राई करते वक्त आपको गूगल फॉर्म क्रिएट करते वक्त कोई प्रॉब्लम आई हो? Yes, I hope I am perfectly audible. Yes or no? Audible? Nobody is responding. Yes, I hope I am perfectly audible. गूगल फॉर्म को एग्जैक्टली हमें कहीं सेव नहीं करना होता एज सेव एज, ये एक ड्राइव पे क्रिएटेड लिंक होता है और जैसे जैसे आप इसमें कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं इट विल ऑटोमेटिकली सेव, ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है बिकॉज गूगल फॉर्म इज क्रिएटेड ऑन द गूगल ड्राइव और गूगल ड्राइव में आप कोई भी चेंज करते हैं तो चेंजेस आर ऑटोमेटिकली सेव्ड. There is no need to press Control S or there is no need for save as option. ठीक है, ड्राइव पे आप कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे इट विल ऑटोमेटिकली सेव्ड. यस, एनी अदर डाउट? यस गाइस, एनी अदर डाउट इन द गूगल फॉर्म? नो डाउट्स? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, प्रवीण यस. सर ने वीडियोस अपलोड नहीं करी, मैं 2 बार मैसेज कर दिया है बट मैं शायद लास्ट टू लास्ट क्लास ले नहीं पाया था, मैंने मैसेज Okay, किया था कोई नहीं. okay, I'll request him again. Don't worry. I'll request him again. No problem. Okay, बट and असाइनमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है बट मैं कर रहा हूँ, फिर मैं कर नहीं सकता लाइक मुझे आता नहीं फिर. okay, I'll tell him today only, so you'll get the videos by today only. ओके, थैंक यू. ठीक है? Yes, and in case you feel any doubt, you can ask me anytime. Yes, any other doubt in the Google form? Any stupid doubt you have, please ask. अपने मन में मत रखो, कोई भी डाउट है तुम्हें, so please ask. Yes, you are facing this problem. Yes, yes. Someone please let. Yes. Yes, I hope I'm. Yes, guys, please let me know. There is a electricity glitch at my end. Yes, audible or not? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So download the Excel sheet that I shared with you all. Yes, download the Excel sheet and keep it handy. And we'll be working on the same Excel sheet. Download it and open it.
So in today's session, we'll be covering the statistical function and the text function, like how to deal with the text. We'll be doing the some of the practical examples also, कि क्या practical scenario में जब आपको कोई भी raw data दिया जाएगा, how you can use these text functions to clean your data. And next is the statistical function, which are very useful when you are coming up with any of the study, like you can calculate the mean, mod, median, average. So you can go by these methods. So yes, I hope I am perfectly audible. For the last time I am asking. Yes, please. Yes, ma'am. Okay, so statistical function, like you people have already studied the business statistics. सबने पढ़ा होगा business statistics, and you have a very long formulas for calculating the mean, mod, median, standard deviation, variance, correlation, regression, and how you can calculate these data, the mean, mod, median, descriptive statistics with just a single click. कि आपको बहुत कुछ नहीं करना होगा, आप एक सिंगल क्लिक से एक फॉर्मूला फिट करके हाउ यू कैन कैलकुलेट दोज बिग फिगर्स. तो एक्सेल में हम देखेंगे कि हम कैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मीन, मॉड, मीडियन, डिस्पर्जन की जितने भी आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इट विल बी अ इजी थिंग फॉर यू ऑल कि किस तरीके से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. And text function is very useful when it comes to the क्लीनिंग ऑफ डेटा. जब डेटा क्लीनिंग की बात आती है तो टेक्स्ट फंक्शंस आर वेरी यूजफुल. जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि कन्वर्ट द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन प्रॉपर केस, लाइक so many student write like my name is Kajal Mittal, so I write Kajal and M in the small letter, like M, small m I double Tal. So this problem arise in most of the scenario. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लेटर्स को सही तरीके से नहीं लिखते, मतलब आपका फर्स्ट और लास्ट नेम का फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, बट आप लोग नहीं लिखते हो. सो इस सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, एंड थ्रू दिस वर्कशीट you can learn this thing also. Give me a minute, please. Yes, I hope my screen is visible. Yes, screen is visible, guys. And I hope this screen is also open in your system also. I shared the same Excel file with you all. So download that Excel file and open in your system. Yes, everybody is having this Excel file quickly. Yes, guys, quickly. Yes, please let me know. Yes, ma'am. Okay, so we'll be starting up with the statistical function first. Move to the fourth sheet. Fourth sheet पे आ जाओ, that is stats function. We'll be starting up with the statistical function. So those who are in the third semester,
they are studying business statistics right now. पढ़ रहे हैं आप सब, those who are in the third semester or those who are in the fifth semester or those who are pass out, everybody studied this business statistics. Yes or no? Yes or no? Yes. So you learn the big formulas for calculating the mean, like sigma fx upon में sigma f. F for median, you have lower limit plus n by 2 minus cumulative frequency divided by the frequency of the median class into height. And similarly, you have a formula for mode, you have a formula for correlation, standard deviation, variance. But in Excel, how we can calculate the mean, mode, median? So we have different formulas for that. Like for calculating mean, we have the formula known as average. For the median, we have a formula known as median. For the mode, we have the formula known as mode. So you have this data set. You have the data of 5 students, Ravi, Amit, Saloni, Rahul, Shruti. And you have the marks in maths and marks in the subject production and operation management POM. And out of 20, the marks are given. And you have to calculate the average marks, or we can say the mean marks, the median, mode, correlation, or the variation in the marks, and the standard deviation. So let's start. Let me clear this and start with the mean. So for Excel formula, for which is the mandatory condition? Yes, for Excel we need is equals to sign. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so mention average, select this range because we want the average marks of these 5 students and click OK. So the average marks is 9.4. So this is the average marks in maths. So on an average, the marks formula? Yes. Formula दोबारा से apply करूं or I simply drag it? Yes or no? Okay, I can simply drag it. If I drag it, only the range will change. The formula will remain same because I want to calculate the mean marks of the poem. So the formula again will be average, and now I want to look at these columns from D14 to D18. So I simply drag it and it will take D14 to D18. So in the poem we have 9.2 marks out of 20 on an average. So it is very easy. So you can simply mention the average formula and you can get the mean. I hope my point is clear. And you must be knowing about the interpretation also. Like these 9.4 is the marks. 9.2 is the marks. On an average, these 5 students scored 9.2 marks in poem, and on an average 9.4 marks is the score in mathematics. Clear? Yes or no? Okay, next we move to the median. So write MEDIAN, median. Select the range, close bracket, and click OK. So you will get the median score of the mathematics marks. And if you simply drag it, you can calculate the median marks of poem also. Yes, I hope my point is clear. Yes or no? Yes, guys, yes or no? I hope you people are doing along with me. Yes or no? Yes, guys, what do you mean by the term median? What is median? ये median क्या बता रहा है आपको? The median value of 7 marks, the median value of 10 marks. What do you mean by this? Yes. Mid of.
Yes, this median is nothing but the mid values, or we can call it as the midpoint. Next is mod. So just like median, we have the formula for mod, MODE, and select the range, close the bracket and click OK. So by chance mod is also 7, and if I simply drag it, I will get the mod marks for the POM also. What do you mean by the statistical function mod? Yes? Highest number of repetition. Yes, the number which appears maximum time, or the number with maximum frequency. तो जो mod है वो frequency नहीं है. अब मेरे Mod एक्सेल वर्जन में मॉड ये फंक्शन नहीं है मैम. mod function नहीं. Are you sure? Write it. मैम 2007 एंड अर्लियर के लिए है ये मॉड फंक्शन. देखो होना चाहिए बच्चे. मॉड डॉट सिंगल है मैम मेरे में. mod डॉट सिंगल. ये चीज तो मुझे क्लास के बाद एक स्क्रीनशॉट भेज सकते हो क्या? प्रॉब्लम है सुधांशु, जो भी दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है एक बार. MOD टाइप करके देखना ड्रॉप डाउन में क्या क्या दिख रहा है. तो मैं मॉड और डॉट सिंगल, मॉड डॉट मल्टी है. अच्छा, ऐसा कुछ हमारे में तो नहीं, मेरे में तो नहीं आ रहा. मैम आपके पास ओल्डर वर्जन है इसीलिए. ओल्डर वर्जन है मेरे पास. यस मैम, 2007 या 10 होगा आपके पास. अच्छा, तो ये जो वर्जन है दिस इज इन दी. मैम ये ओल्ड वर्जन के लिए है, मतलब 2007 एंड अर्लियर के लिए है ये वाला फंक्शन जो है मॉड, MOD. आपके पास जो है बच्चे वो कौन सा मैम है? मेरे पास 2019 है. ओके, तो हो सकता है इसमें जो बाय मॉडल सीरीज होती है उनका भी हो. जो भी है ना, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, आई विल टेल यू द इंटरप्रिटेशन. ठीक है, ये हो सकता है एक सिंगल सीरीज के लिए हो. सो यू कैन रन mod डॉट सिंगल वाला जो भी तुम बता रहे हो, वो तुम्हारे केस में फिट हो सकता है. हो सकता है जो नया वर्जन आया है विंडो का उसमें और एडवांस्ड फीचर ऐड कर दिए हो. ठीक है, ओके. सो मॉड में ये ध्यान रखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नॉट द मॉड, द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मॉड. मेरी बात समझ आ रही है? जैसे लेट सपोज कि आपकी क्लास में 19 मार्क्स मैक्सिमम बच्चों के आए हैं, और 19 मार्क्स लेट सपोज 30 स्टूडेंट्स के आए हैं. सो मॉड विल बी 19 और 30. यस, क्या होगा मॉड? 19. Yes, the mod is 19. ये ध्यान रखना, the value of frequency is not the mod. The value corresponding to the maximum frequency is the mod. This is the major mistake done by most of the students. Clear? So I hope statistical function के बारे में आपको पता है, mean, mod, median क्या होता है. This is the simplest way. Next is move. These mean, mod, median are the measures of central tendency. Now we are starting up with the measures of dispersion. What do you mean by the term standard deviation? Yes, what standard deviation tells you? क्या बताती है standard deviation? Standard deviation tells you the deviation from the average, कि आपकी जो values है वो एवरेज से कितना डेविएट कर रही है. लाइक वी हैव एवरेज वैल्यू ऑफ 9.4 इन केस ऑफ मैथमेटिक्स. So how this 9.4 deviates from this original observation? 9.4 और 18 में कितना डिफरेंस है? 9.4 और 7 में कितना डिफरेंस है? So the standard deviation talks about the deviation or the difference between the central value and the actual value. This is the basic meaning of standard deviation. So for calculating the standard deviation, you have a function called STDEV. ST for the standard and deviation के लिए DEV. Yes, I hope you people are with me and doing the hands-on. Yes, how many of you are doing along with me? Yes, please raise your hand. How many of you are doing with me? Good, excellent, very good. And what about others? Yes, मेरे साथ साथ करते रहो, because we have the assignment on the same formulas. So for the standard deviation, you have a formula called STDEV.
So click on this STDEV, select the range, close the bracket and click OK. So my standard deviation is nothing but 5.770, and for the poem I simply drag it and I got 1.64. Now tell me, higher standard deviation is better or lower standard deviation is better? Deviation should be lower or deviation should be higher? Lower. Yes? Lower. Yes, lower the standard deviation, better the result is. क्या पता चल रहा है कि आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपके एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से बहुत क्लोज है. There is very less deviation between the central value or between the average value and the actual value. So lower standard deviation is always better. Next, one of the other important observation. Variation is nothing but variance. इसको variance भी कहते हैं. Yes. What is the relationship between variance and standard deviation? You people studied this thing in your class 11th or 12th also. Class 11th or 12th में you have one subject as statistics. Quickly. Yes, what is the relationship between standard deviation and the variance? Or you can see from the screen also, I mentioned in the first starting 10 rows. क्या है relationship variance और standard deviation में? Quickly. लिखा हुआ है square of standard deviation. Yes, very good, excellent Sankalp. Like variance is nothing but the square of standard deviation. कि जो standard deviation आपने निकाला है, अगर उसका आप square कर देंगे, so you will get the variance. This is the first way. Another way is we can calculate the variance using a formula. Like we have, like I do not want to calculate the standard deviation, I simply want the variance. So I fit the formula is equals to VAR. So VAR is the formula for the variance. So VAR, select the range, close the bracket and click OK. So you will get 33.3 as the variance, and I am dragging it and get the value for the poem variance 2.7. Can we check it? चलो क्रॉस चेक करते हैं कि whether we are getting the same value or not. मैं इनका स्क्वायर निकालती हूँ. 5.77 into again this. Yes, 33.33. Yes, I hope you people are with me. Yes or no? और रीचेक करते हैं, इसी को ड्रैग करके देखो. Yes, 2.7. D21 into D21. Clear or not? Yes, the relationship is proved that variance is nothing but the square of standard deviation. Yes or no? Yes, sir. Okay, what about others? Can we expect the response from other also? Okay, so I'm asking which formula is used for calculating the mean? Quickly response. सबकी साइड से आना चाहिए. Yes, which formula can we use for calculating the mean? Average. Very good, excellent. And for calculating the standard deviation, we can use which formula? STDEV. STDEV. ऐसा नहीं है कि हर जो statistical function है उसके लिए उसका नाम का ही formula है. Like standard deviation is a very big word. So standard के लिए ST and for the deviation we have DEV. And this is very very important. ऐसा नहीं है कि जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सारा डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो क्या आप बैठ के मैनुअली कैलकुलेट करोगे मैनुअली कैलकुलेट करोगे डेविएशन. And these descriptive statistics are the minimum thing which are required in your projects. ये बिल्कुल मिनिमम बेसिक चीजें हैं और ये तुम्हें सिखाया जा रहा है. सो एटलीस्ट पे अटेंशन, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको बहुत ही थोड़ी सी ही एफर्ट्स के साथ ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी. क्लियर? द नेक्स्ट इज कोरिलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोरिलेशन? Yes? Yes, what do you mean by the term correlation? Correlation tells you the association or relation between two variables. Clear?
आपको दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है वो बताता है कोरिलेशन। और अभी हम इस पे एक दो और स्टेप्स में कराऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि कोरिलेशन होता क्या है। जैसे आई वांट टू सी द कोरिलेशन बिटवीन मैथ्स मार्क्स एंड द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, कि इन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स में क्या कोरिलेशन है। सो हाउ आई कैन गो अहेड इज इक्वल्स टू Coral. For correlation, we have a formula known as Coral. CORREL. Correlation के लिए short में जो formula है that is Coral. CORREL. So you have this math marks, comma, range of poem marks, bracket close and click enter. Yes. Should I repeat it again? पहले आपने कॉरल फंक्शन लगाना है, मैथ्स की मार्क्स की रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा पोम की मार्क्स की रेंज को सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ओके, बिकॉज यू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल. फर्स्ट इज मैथ्स मार्क्स एंड सेकेंड वेरिएबल इज पोम मार्क्स. सो यू कैन फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. आप किसी एक ही उसका एक से ही कोरिलेशन निकालोगे, so the correlation will always comes out to be 1. अगर मैं मैथ्स के मार्क्स के साथ ही कोरिलेशन निकाल रही हूं तो वो क्या होगा, परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे, so you will get 1. But this is showing that maths and poem marks are related 0.1476. So we can say that the maths and poem are 14.76% related. So the relation is very strong or very weak? Yes or no? The relation is very strong or the relation is very weak between maths and poem? Weak. Yes, the relation is very weak. The value 0.1476 is showing a very weak relationship. और जितना ज्यादा वैल्यू 1 के क्लोजर होगी उतना स्ट्रॉन्गर रिलेशन होगा. वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज the value of correlation lies between, yes, from the third semester I can expect answer -1 to +1. yes, from -1 to +1. So if you are getting a value more than 1.26 and something, so make sure that there must be some calculation error or there must be some error in the selection of the range. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है. कोरिलेशन वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1 एंड कोरिलेशन कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. So a negative correlation is showing that the two variables are negatively related, and this 0.1476 is showing that the variables are Weakly positively correlated. very positively related, but the relationship or the association is very weak. Positive correlation का मतलब क्या है कि as the score or as the marks of maths increases, the marks of poem is also increasing. Clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Move to the next example. So I am deleting this. You have hours studied and the result. और ये इसका आपने correlation निकालना है. There is a correlation between the number of hours you studied and the result that you got. क्या relation है वैसे? In general क्या relation है? There is a positive relation or a negative relation between these two things. कि as you increase the number of hours, the result would be कैसा होगा? The result would be better. So the hours studied and result is the positively related. So you have two variables. One is hours studied कि आपने study को कितने hours devote किए, and another variable is the result. Yes, how I can calculate the correlation value? Quickly tell me the formula. Yes, tell me the formula how I can calculate the correlation value. Coral. And select the range first, that is hours studied, comma,
select the range, result, bracket close. Clear? So you will get correlation as 0.8454. So what do you mean by this? What do you mean by this? That the R studied and the result is? कैसा relation है? Strong. Strong. There is a very strong relationship between R studied and result. Both these variables are closely related. Positively related तो है, alongside the variables are closely related. 84.454. If there is any change in the R studied, it will affect the your result by 84.54%. Yes, clear? Any doubt? Yes, any doubt? कोई डाउट है बच्चे? No doubt. Okay, so move to the next example, rank. Clear? अब यहां पर देखते हैं, मैंने आपको कुछ परसेंटेज दी है स्टूडेंट्स की, 92%, 98, 87, 84. दिस इज द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड आई वांट कि मुझे पता चल जाए कि किस इनमें से रैंक्स पता चल जाए कि इन जो भी मेरे पास 9 स्टूडेंट्स का डेटा है, इसमें से कौन बच्चा फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया. सो विच फंक्शन शुड आई यूज in order to calculate the rank? So I will use the function rank. So mention RANK. And this is the data of only 9 students. You can have the data of multiple lakhs of students. जैसे अगर आपका कैट का रिजल्ट आया, ये थोड़ा ना वो एक एक बच्चे का बैठ का रिजल्ट देखेंगे. दे जस्ट फिट दी फॉर्मूला फिट कर देंगे एंड यू विल गेट दी रिजल्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला. क्लियर? इससे पहले अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में. इससे पहले जितने भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, लाइक मीन, मॉड, मीडियन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूला है. बट ये रैंक्स एंड ऑल वाले फॉर्मूला हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. ठीक है? सो हाउ वी कैन यूज दिस? प्लीज पे अटेंशन. दिस इज लिटिल बिट टेक्निकल. Rank, little bit, very little bit. Rank, select this first rank because I want ranking of this number, comma, select the entire range. कि इस पूरी रेंज में, इसका मतलब क्या है? देखो 92 मार्क्स या 92% इस पूरी रेंज में कहां स्टैंड करता है, ये आपसे पूछा गया. सो आई विल सेलेक्ट द नंबर, कॉमा, I will select the entire range and click on enter. So but it is showing me, yes, क्या दिखा है मुझे? Third. Yes, the person whose result is 92% scored third position. Clear? Okay. अब मैं तुम्हें एक डिफरेंस बताती हूँ. अगर इसी को मैं सिंपली ड्रैग कर दूंगी, सो इट इज ओके. देखो ये क्या रिजल्ट दिखा रहा है मुझे? ये दिखा रहा है फर्स्ट कितने सारे बच्चे आए हैं, सेकंड कितने सारे बच्चे आए हैं. बट दिस इज रॉन्ग. ये गलत फॉर्मूला है. देखो इसमें रेंज बदल गई फ्रॉम 47 टू 55. 55 पे हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है. सो हाउ वी कैन प्रोसीड? कैन एनीवन सजेस्ट मी? F4. Yes, F4. Now we can freeze the cell. Yes, we can freeze this range. जो रेंज है आपकी, उसको हमें क्या करना होगा? उसे हमें फ्रीज करना होगा. ठीक है? सो आई विल मेंशन रैंक this, select the range and enter the dollar sign, or you can press F4. F4 की वर्किंग हर किसी के सिस्टम में नहीं होती है, so you can manually add the dollar sign also. Clear? And click on OK. And now you can simply drag. देखो अब इस चीज का ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ रेंज को ही फ्रीज किया है, बाकी जो सेल है वो बदलते रहेंगे. जैसे हमें देखना है 87 की रैंक, सो इसने क्या सेल लिया है? B48.
मतलब इस रेंज में 87 कहाँ स्टैंड करता है? सो 87 स्टैंड्स एट 4th पोजीशन. Yes, I hope my point is clear. Rank point is clear, guys. Yes or no? Yes, sir. Clear. So this formula is very frequently used. The only thing that you keep in mind is freeze the range. आप जब ड्रैग कर रहे हो तो आप जो भी रेंज है, जिस रेंज को आप पोजीशन देखना चाहते हो, लाइक आई वांट टू सी द रैंक बिटवीन दीज 9 स्टूडेंट्स, तो आपको इस रेंज को फ्रीज कर देना है. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? Yes, guys, any doubt? Rank formula is very important. These are the statistical function. Next is this standard deviation. एक और standard deviation हम देखते हैं तो तुम्हें standard deviation का actual meaning समझ आएगा क्या है. Yes, move to the right hand side example. I hope screen is perfectly visible to all. इसको थोड़ा zoom करने की जरूरत है. Yes, now visible? Yes, sir. Okay. How many of you are with me? Yes, doing with me? Okay. Chalo. Now see the standard deviation. It is showing me the details of 5 person and their 5-day working. Let's suppose there are 5 workers and their 5 days production is mentioned over here. So the worker first or the person first produce 10 units in day 1, 10 units on day 2, 10 units in day 3 and same as in day 4 and day 5. So the person is deviating. ये जैसे एक प्लेयर की बात करें तो पहले भी उसने फर्स्ट डे भी उसने 10 रन बनाए, नेक्स्ट डे ही स्कोर द सेम रन, थर्ड डे ऑल्सो, फोर्थ डे ऑल्सो, फिफ्थ डे ऑल्सो. सो द डेविएशन हियर इज 0. सो लेट अस सी. चलो अब देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं STDEV. So we are calculating the standard deviation of person 1. So I am selecting the range. Range selection में बहुत ध्यान रखना, रेंज सिलेक्शन जो होगी वो इसकी होगी पर्सन 1 की, क्योंकि मैं पर्सन 1 की परफॉर्मेंस की डेविएशन देखना चाह रही हूँ. Yes, I hope the point is clear. Earlier I selected the range in the column manner. Now I selected the range in the row manner because I want to calculate the standard deviation in the performance of person 1. Clear? And it is showing me the value 0 because the person is performing consistently. कोई deviation है ही नहीं, हर डे वो 10 units produce कर रहा है. Now see the next. The person 2 produces 1 unit in day 1, 4 units on day 2, then 2 units, then 1, then 5 units. So what can you say about it? क्या कहते हो इसके बारे में? क्या the person is deviating? चलो अब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू देखते हैं. देखने से क्या पता चल रहा है कि डेविएशन बहुत ज्यादा है. किसी दिन वो 1 यूनिट बना रहा है, किसी दिन 4 यूनिट्स बना रहा है. नाउ सी द वैल्यू. द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट 1.8165. अब अप्रोक्सीमेटली 1.82. Now I can simply drag in order to see the person 3, 4 and 5 performance. Now see. Person 4. See the person 4 score. पर्सन 4 की डेविएशन क्या है कि फर्स्ट डे उसने सिर्फ 5 यूनिट्स बनाई एंड सी द डे 5. डे 5 में उसने जो प्रोड्यूस किया वो क्या था? 35 यूनिट्स. सो दैट्स व्हाई द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पर्सन 4 इज द हाईएस्ट वन. चलो अब मैं इनमें से ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि इफ यू वांट टू हायर अ वर्कर आउट ऑफ दीज 5, विच वन वुड यू प्रेफर? अगर आपको मौका दिया जा रहा है कि आपने इन 5 वर्कर में से किसी एक को हायर करना है, सो विच वन वुड यू प्रेफर? 4. सॉरी, Person 4. Person 1. यस, पर्सन 1. आप पर्सन 1 को प्रेफर करोगे बिकॉज द डेविएशन इज वेरी लेस. आपको पता है कि हर इस पर्सन की जो कंसिस्टेंसी है वो सेम रहेगी. ये हर बार 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है. बट संकल्प ने भी कुछ सोच के आंसर दिया. संकल्प ने ये कहा कि 4 को हायर करो.
ये तो 35 यूनिट बना देगा एक दिन में, बट दैट पर्सन इज नॉट कंसिस्टेंट। आपको नहीं पता, हो सकता है ये किसी दिन 5 ही यूनिट बनाए। या थिंक अबाउट द प्लेयर कि यू आर द ओनर ऑफ ए पर्टिकुलर टीम, और आपको ये कहा जा रहा है सेलेक्ट वन प्लेयर आउट ऑफ दीज 5 प्लेयर, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? जिसकी आपको श्योरिटी है कि यस दिस पर्सन इज कंसिस्टेंट, कि हाँ ये पर्सन अच्छा परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि किसी दिन तो इसने बहुत ही रन बना दिया और किसी दिन बिल्कुल ही 0 पे आउट हो गया। सो यू ऑलवेज प्रेफर कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो यू विल ऑलवेज प्रेफर द पर्सन हु इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये सारे स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज कहाँ यूज होते हैं। So statistical formula is all about the mean, mod, median, correlation, variance, maximum, minimum। एक maximum और minimum वाला point और मैं करा देती हूँ आपको, मैंने असाइनमेंट में दिया है वो, पर दोबारा से बता देती हूँ कैसे। maximum means Highest of all. yes, maximum value from the given observation, ठीक है। सो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपके पास फॉर्मूला है मैक्स एंड मिन, ठीक है। सो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू MAX मैक्स। सो आई वांट टू सी कि इसमें से मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं। सो आई विल सेलेक्ट द रेंज एंड क्लिक ऑन ओके। सो द मैक्सिमम मार्क्स इज 18, और पोम में देखें तो द मैक्सिमम मार्क्स इज 11, कि जो हाईएस्ट मार्क्स रहे वो कितने रहे पोम में? 11। अब देखते हैं मिनिमम मार्क्स। सो MIN is minimum, select this range and click OK। so minimum marks in maths is 3 and minimum marks in poem is quickly कितने हैं? 7। yes, the minimum marks is 7। and if I say you to calculate the range, yes, how I can calculate the range quickly? Who will tell me? yes, range कैसे calculate होगी? एक एक्स्ट्रा चीज और मैं पूछ रही हूं आपसे, द फॉर्मूला फॉर रेंज। यस, फॉर्मूला फॉर रेंज देखते, इनबिल्ट फॉर्मूला है कोई रेंज का? RANGE नहीं है, तो फॉर्मूला फॉर रेंज बताओ। यस, दोज हु आर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्विकली। यस प्लीज, दोज हु आर द स्टूडेंट ऑफ स्टैट्स, या जिसने पहले पढ़ी हुई है वो बता सकते हैं फॉर्मूला फॉर द रेंज इज। यस, अर्जव, अंकुर, सिमरन, सेजल, खुशी, क्विकली क्या होता है फॉर्मूला? यस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो वी कैन से दैट इज इक्वल टू मैक्स माइनस मिन एंड क्लिक ओके। सो देर इज नो इनबिल्ट फॉर्मूला, you can apply the formula of maximum minus minimum। clear? yes, any doubt in the stats function? yes, any doubt? No, ma'am. okay, so move to the third sheet, or I hope the statistical functions are quite crystal clear। so I will show you the assignment also। असाइनमेंट आपको ये दूंगी मैं, और यही सेम असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। और असाइनमेंट में आपने मीन, मॉड, मीडियन कैलकुलेट करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन। सो किसी को कोई डाउट है सो यू कैन आस्क ऑल्सो कि किस तरीके से करना है। जैसे हमने फॉर्मूला लगा के अभी किया है वही सारी चीजें आपको करनी होगी। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस और नो? हम मैक्स एक फंक्शन के बारे में बता दो। किसके बारे में? हम मैक्स ए। मैक्स ए? यस मैम। मैक्स ए एडवांस होगा कि वो किस सिनेरियो में यूज होगा, वो मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हमारे में तो मैक्स ए मुझे तो नहीं शो हो रहा। मैक्स ए आ तो रहा है
सिस्टम में रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ डजंट इग्नोर द लॉजिकल, ये कंडीशंस के साथ होगा कि मैक्स ए होगा कि किसी कंडीशन को देखते हुए हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। मैम वो तो मैक्स इफ है। मैक्स इफ तो कुछ नहीं है, देखो मेरे सिस्टम में तो कोई नहीं शो हो रहा मैक्स इफ। मैम वो 2007 के बाद इंक्लूड हुआ है ना, तो आपका वर्जन पुराना है। अच्छा, जो न्यूएस्ट वर्जन आया होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्जन विच इज अवेलेबल विद एवरीबडी। ठीक है, तो कोई एडवांस वर्जन आया होगा तो विल अगेन फिक्स सम ऑफ द क्लास विद एडवांस एक्सेल। ठीक है, देयर इज अ कोर्स आल्सो ऑन एडवांस एक्सेल जिसमें आपको एडवांस फीचर्स सिखाए जाएंगे, सो विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ द एडवांस फीचर्स। So till the time, please pay attention here. So this is the assignment जिसमें आपको मीन मॉड मीडियन निकालना होगा, कोरिलेशन निकालना होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और डेटा आपको ऊपर दिया गया होगा, और इसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा, और ऐसे ही आपको यहाँ पर रैंक्स कैलकुलेट करने होंगे। क्लियर? कोई देखने से लग रहा है असाइनमेंट में डाउट आ सकता है? सो ये आपको अपलोड करना होगा गूगल फॉर्म में, और यही सेम गूगल शीट, यही सेम एक्सेल शीट आई विल शेयर विद यू आफ्टर द क्लास. सो दिस इज द असाइनमेंट. नाउ मूव टू द टेक्स्ट फंक्शन. Yes, move to the text function. So I will tell you the text function. Yes. Move to the third worksheet and you have this names are given: Judge Dredd, Optimus Prime, Julius Caesar, Iron Man. और आपको इनके नाम को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉपर केस? क्या होता है? जैसे आपको कहा जाता है कि ऑलवेज राइट योर नेम इन द प्रॉपर केस. यस, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर केस? Each first capital letter. आवाज नहीं है संकल्प, योर वॉइस इज नॉट क्लियर. Yes, anybody? What do you mean by the term proper case? In the beginning also I told you about the proper case. क्या होता है proper case? Proper case is nothing but that the first alphabet of each and every word should be capital. This is meant by the proper case. जैसे if I am writing my name काजल मित्तल, so काजल का K कैपिटल होना चाहिए और मित्तल का M कैपिटल होना चाहिए. This is meant by the proper case, or we can call it as sentence case also. क्लियर? सो प्रॉपर केस में क्या करेंगे? अगर मुझे इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है, जैसे आप ध्यान से देखो, जज ड्रेड का J स्मॉल है, D स्मॉल है, सो आई वांट टू फिट द प्रॉपर केस. सो राइट द फॉर्मूला इज प्रॉपर, PROPER, and select this, close the bracket and click OK. And I will show you the practical example also, जो मैंने खुद किस सिनेरियो में यही सारे फॉर्मूलाज को यूज किया. एंड यू पीपल विल ऑल्सो कम अक्रॉस विद द सिचुएशन व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला. नाउ आई कैन सिंपली ड्रैग दिस एंड गेट द एग्जैक्ट नेम. नाउ सी, द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम दोनों के ही आपको जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल दिख रहा होगा. यस और नो? यस और नो? Yes or no? Yes, guys. Yes or no? Clear or not? Okay. Yes, now, ma'am. now move to the uppercase. What do you mean by the uppercase? क्या मतलब है uppercase का? Like I want the names in the capital letter. So uppercase means in the capital letter. So the formula is upper. Upper. Select the cell. Click OK. Now see. The name Judge Dredd is converted into capital letters, and I'll simply drag it. Clear? Next is lowercase. So I want the names in the lowercase. मतलब मुझे सारे जो नाम है वो small alphabets में चाहिए. So I will apply the formula select the cell, not the range.
and click on OK. And I'll simply drag it. Yes. By chance, the names are in lowercase, so you will hardly see any difference between these two. Okay, and with this we will learn the next function, that is exact function. Yes, I hope there is no doubt in the proper upper and lower function. Proper function is for making the first alphabet of each word capital one. For the uppercase, all alphabets in capital case. For the lower function, all alphabet in the lower case. Yes, Sankalp, you want to ask something? Okay. Now see the exact function. देखो exact function क्या है, मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ये जो नेम मुझे फर्स्ट कॉलम में दिए हुए हैं और ये जो नेम मुझे फोर्थ कॉलम में दिए हुए क्या ये बिल्कुल सिमिलर हैं? देखो देखने से क्या पता चल रहा है, ये भी लोअर केस में, ये भी लोअर केस में. सो आई विल यूज द एग्जैक्ट फॉर्मूला. सो आई विल मेंशन exact and it is showing me two text. So I am selecting this text 1 and text 2. मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ये दोनों टेक्स्ट सिमिलर हैं. नाउ सी द आउटपुट. इट इज सेइंग, क्या आया मेरे पास आउटपुट, रिजल्ट क्या आया? व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रू? यस, द टू टेक्स्ट आर एग्जैक्टली सेम. देखो अब इसको मैं ड्रैग करती हूँ. सो इट इज saying that yes, A2 or we can say the column A and the column D are exactly similar. Exactly similar मतलब ये जो 5 नाम है या 6 नाम है वो बिल्कुल मैच है इन 6 नामों से. चलो अब दूसरे टेक्स्ट का करते हैं सर्च. नाउ आई विल टेक कॉलम ए एंड कॉलम बी. देखते हैं ये सिमिलर है. अकॉर्डिंग टू यू इट इज सिमिलर द कॉलम ए एंड कॉलम बी? नहीं है सिमिलर. एक लोअर केस में है और एक प्रॉपर केस में. सो विल सेलेक्ट दिस कॉमा, विल सेलेक्ट कॉलम बी एंड क्लिक ऑन ओके. नाउ इट इज शोइंग, क्या रिजल्ट दिखाया? फॉल्स. सो इट मीन्स द थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर. सो अगर आपने कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट किया है, किसी कॉलम का डुप्लीकेट क्रिएट किया है, और इफ यू वांट टू सी the values are exactly copy pasted or the information is very crucial, then you can apply the formula of exact कि कुछ भी चेंज ना हो. it will even consider the space also. चलो मैं अभी ये चीज आपको बताती हूँ. जैसे let's suppose in this Judge Dredd, अभी तो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, let me copy and paste it again as a paste value. ठीक है. अब मैं जज और ड्रेड के बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया मैंने. आई होप यू पीपल आर विद मी. यस और नो? एंड नाउ अप्लाई द एग्जैक्ट फॉर्मूला. अब देखते हैं क्या ये सेम कहेगा. सो आई पिक दिस अप, आई पिक दिस अप एंड क्लिक ओके. देखो अब इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया? false because I entered one extra space in D2. Yes, I hope you people are with me. तो एक एक्स्ट्रा स्पेस भी होगा तब भी ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये आपको ट्रू नहीं बताएगा. ये कहेगा नहीं, जो दोनों सेल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है. यस, आई होप माय पॉइंट इज क्लियर. यस और नो? And it is very beneficial. These functions are very beneficial in some of this situation. Yes or no? Yes guys, clear? Yes, how many of you are actively listening? Please unmute or raise your hand. All right, good. And what about others? Okay. Now see the left and right function. So if you people are actively listening, at least you can respond. बता सकते हो. Now see the left and right function. So what is this left and right function? I want
चलो ये लेफ्ट फंक्शन मैं तुम्हें बताती हूँ क्या है। LEFT लेफ्ट फंक्शन, this name I want from the left pick 3 characters। लेफ्ट से इस नाम के 3 करेक्टर्स को उठा लो। तो देखो फर्स्ट 1 2 3, इसने 3 लेटर्स को उठा लिया। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, फ्रॉम द लेफ्ट इस सेल में से 3 करेक्टर्स को उठा लो। सो यू विल सी दिस क्लियर। एंड फ्रॉम द राइट, लेट्स सपोज इसी में मैं फॉर्मूला लगाती हूं, राइट from this cell pick last 4 characters। सो अब देखो मैन में अगर मैं बताऊं तो मैन में ये स्पेस भी लेगा, ध्यान से देखना। तो इसने लास्ट के 4 कैरेक्टर्स उठा लिए। अब देखो मैन को ध्यान से नोटिस करो, 4th कैरेक्टर यहां पर क्या था, आयरन मैन वाली, इस वाली रो में ध्यान से देखना। यस, आई होप दोज हु आर विद मी क्लियरली सीइंग दिस थिंग कि क्या मतलब है। यहाँ पर MAN था आपके लास्ट के 3 करेक्टर, चौथा करेक्टर जो इसने लिया है वो लिया है स्पेस। ध्यान से देखो, दिखा दिस थिंग, इसमें चौथा करेक्टर जो है वो स्पेस है आपके पास, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा, बट ध्यान से देखोगे सो यू विल सी कि 4 करेक्टर्स मैंने इसको कहे थे, तो इसने 4th एज अ स्पेस ले लिया, बिकॉज 4th करेक्टर इज नथिंग बट द स्पेस। Yes, my point is clear? Yes or no? Yes guys, clear or not? अभी इन अपर लोअर और इन सबसे रिलेटेड मैं तुम्हें एक पूरी वर्कशीट बताऊंगी। जल्दी से मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, now move to the worksheet second. Second worksheet, remove extra spaces. So if you want to remove the extra spaces from the cell, let's suppose आपके उसमें सेल में जो डेटा है उसमें बहुत ज्यादा स्पेसेस हैं कंटेंट में, so you can apply the trim function is equals to TRIM, trim, select the cell, click OK। देखो अब मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग करके ट्रिम फंक्शन लगाया, तो इस सेल में जितने एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो सारे स्पेसेस रिमूव हो गए। सो यू कैन अप्लाई द ट्रिम फंक्शन टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस। क्लियर? यस, एनी डाउट? So I'll be asking you this question when I come to the next sheet. After next 5-6 minutes, after 5-6 minutes, we'll be moving to the next worksheet. So which formula can we use? Yes or no? Which formula? कौन सा formula use करना है? If I want to remove the extra spaces, then which formula should I go for? Trim function, TRIM, trim function. चलो, I'll be asking 2-3 questions, so please tell me. For calculating for converting the text, into capital letters, which formula should I use? Upper. Which? Yes, very good. Okay. Yes, very good, excellent. Okay, if I want to know whether I copied the information in accurate manner, Exact. or yes, exact, or we can use there is one more function called match function. There is a difference between match and exact. तो मैच अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, बट एग्जैक्ट का मतलब समझ लेना। इफ देयर इज वन एक्स्ट्रा स्पेस ऑल्सो इट क्लियर। नाउ ट्रिम फंक्शन इज ऑल्सो क्लियर। अभी मैं आपसे पूरी इन सब चीजों के बारे में पूछूंगी, एक प्रैक्टिकल शीट आपको दिखाऊंगी और तब आपसे पूछूंगी कि बताओ इस सिनेरियो को किस फॉर्मूले के साथ डील करूं। अभी तो आपने एब्सोल्यूट टर्म में पढ़ लिया कि भाई ये फॉर्मूला होता है, और जब आपको पूरा रॉ डेटा दिया जाता है तब दिमाग लगाना होता है कि कौन सा फॉर्मूला फिट करके इस रॉ डेटा को क्लीन डेटा में कन्वर्ट करना है, तब आपके माइंड की एक्चुअल पावर यूज होती है।
Clear? Now move to the first worksheet quickly. First worksheet पे आओ. Yes, move to the first worksheet. मेरी शीट पे, मेरी स्क्रीन पे फर्स्ट वर्कशीट दिख रही है आप लोगों को? फ्रेश नहीं हुई है, एक सेकेंड, आई विल शो इट अगेन. मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, एक सेकेंड. यस, मूव टू द फर्स्ट शीट. कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है फर्स्ट शीट में? यस, फर्स्ट शीट में आपको काफी सारा डेटा दिख रहा है. You have enrollment number, you have the first name, the last name. I'll share it again. 1 second. Give me 1 second. And you will start looking at the sheet first. Sheet first को आप ध्यान से देखो. उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आप कौन कौन से फंक्शन आप सीखने जा रहे हो. Yes. What I want is, वैसे तो इस शीट में आपको पहले से ही डेटा दिख रहा है. डिलीट दिस. फुल नेम को आप डिलीट कर दो, कॉलम को मत डिलीट करना, इनपुट्स को डिलीट कर दो. जो भी उसमें इनपुट डला हुआ है ना, उसे डिलीट कर दो. अभी तो आपको डली हुई चीजें हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है. बहुत बार गूगल फॉर्म में क्या होता है, या आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म देखोगे या किसी के भी फॉर्म देखोगे, आप अपनी मास्टर्स लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो दे विल सेपरेटली आस्क यू अबाउट योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. पूछते हैं ना, या मदर फादर के नाम में भी आपको कहते हैं मेंशन द फर्स्ट नेम ऑफ द फादर, द लास्ट नेम ऑफ द मदर. इस तरीके से पूछते हैं. यस और नो? यस और नो? यस मैम. ठीक है, बट अब जब लेटर ऑन उनके पास डेटा आता है, सो व्हाट दे वांट, तब ये अलग अलग कॉलम में आपके पास डेटा आएगा. ऑब्वियसली जैसे आपने लोगों से लिया होगा उसी तरीके से आपके पास डेटा क्रिएट होकर आएगा. सो नाउ दे वांट दैट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम विल कम टुगेदर. सो फॉर दिस वी हैव वन फॉर्मूला. क्या नाम है उस फॉर्मूले का, अगर पहले पढ़ा हो तो कभी? यस, कॉन्केटिनेट. किसने पढ़ा हुआ है पहले ये फॉर्मूला? ओके, संकल्प. ओके, कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो विल यूज दिस concatenate formula is equals to concatenate. Now I want first this initial Mr. Mehak Lonial, which is a wrong initial. So let me change it as Miss. नाम से क्या पता चल रहा है? Mehak Lonial is a girl. ठीक है, so I'll write concatenate tab initials comma, I want a space, that Miss space Mehak space Lonial. तो आपको स्पेस के लिए भी इन्वर्टेड कॉमास में ये चीज डालनी. इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, a comma, first name, comma, I want a space, comma, I want last name, and click OK. Yes. My screen is not visible? Yes or no? No, ma'am. Not visible, and you people are not telling me this thing. मैंने तो शेयर की है अपने साइट से. एक सेकेंड, I'll show it again. Show it again, just a second. And people are leaving the meeting just because the screen is not visible to them. Yes, now visible? Maybe I forgot to click the. Yes, now visible? Yes ma'am. Yes, please. I'll again repeat. Please see. देखो किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर देखना. कंकैटिनेट फंक्शन के लिए मैंने क्या किया, कंकैटिनेट, देन आई विल क्लिक ऑन इनिशियल्स. आफ्टर दैट आई वांट अ स्पेस between initials and first name.
सो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस डाला, देन आई सेलेक्ट फर्स्ट नेम and after first name I want space between first name and last name, so I entered inverted commas space inverted commas close and after that the last name and click OK. so OK क्लिक करने के बाद मेरे पास ये तीनों को मर्ज करके नाम आ गया, और देखो इस नाम में मेरे को प्रॉपर स्पेस दिख रहा है, मिस के बाद स्पेस है, महक के बाद स्पेस है, and you can simply drag it. Now clear? Yes or no? concatenate फंक्शन दोबारा से लगा के दिखाना है, yes or no? yes or no? concatenate फंक्शन में कोई डाउट है? स्पेस के लिए यहां पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास और स्पेस रखा है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है. क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Clear. ओके, नाउ सी द मिड फंक्शन. देखो अब मिड फंक्शन किस तरीके से रन होता है. मिड फंक्शन क्या कह रहा है आपको, देखो मिड फंक्शन के क्या यूसेज है मैं वो बता देती हूँ कि मिड फंक्शन की यूसेज ये है. जैसे आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है ना, इनरोलमेंट नंबर का जो थर्ड करेक्टर होता है, इनरोलमेंट नंबर, जैसे लेट्स सपोज दिस इज द इनरोलमेंट नंबर, और ये एक्चुअल सिनेरियो. कैन एनीबॉडी टेल मी योर इनरोलमेंट नंबर क्विकली? बताओ मुझे अपना इनरोलमेंट नंबर बताओ. 008611 एक सेकेंड, धीरे धीरे बोलो. 008 30 मैम 3 हटा दीजिए मैम, सिर्फ 008 008 611 611 8819 18 8819. 8819. ठीक है. सो दिस इज दी, ये सही लिखा है मैंने, देखो स्क्रीन पे. यस मैम, सही है. सही है. 8611 8819. सो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 611 इज द इंस्टीट्यूट कोड. आई वांट कि इसमें जितने भी लोग बच्चे दिख रहे हैं मुझे, उनसे मुझे इंस्टीट्यूट कोड का पता चल जाए. तो आई विल अप्लाई द मिड फंक्शन. सो व्हाट मिड फंक्शन सेज, MID mid, this is the text. I want third number and 3 letters. जो इंस्टीट्यूट कोड होता है वो 3 करेक्टर्स का होता है, और मुझे क्या पता चल रहा है कि जो आपके इनरोलमेंट नंबर का थर्ड करेक्टर है वहां से इंस्टीट्यूट कोड स्टार्ट होगा और वो 3 करेक्टर्स का होगा. सो दिस इज द मिड फंक्शन. दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं मैं क्या मतलब है मिड फंक्शन का, कि आपके इनरोलमेंट नंबर का जो थर्ड करेक्टर है, और थर्ड करेक्टर का मतलब है 281, 1 से आपका इंस्टीट्यूट कोड स्टार्ट होता है, और कितने नंबर का होता है वो 3 करेक्टर का. सो 147 इज योर इंस्टीट्यूट कोड. और इसने मुझे ये अपने आप एक्सट्रैक्ट करके दे दिया. क्या किया मैंने, सेल को सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग नंबर मैंने सेलेक्ट किया थर्ड होगा, और कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स का है 3. सो यस, आई होप माई पॉइंट इज क्लियर. यस और नो? यस मैम. क्लियर. तो यहां पर 3 का मतलब क्या है, यहां पर पहले वाले 3 का मतलब है कि आपका एनरोलमेंट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है. मेरा इंस्टीट्यूट कोड है वो, इंस्टीट्यूट कोड आर स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड करेक्टर, और लास्ट वाला जो 3 है वो ये बता रहा है कि इंस्टीट्यूट कोड कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स का है. सो इंस्टीट्यूट कोड इज ऑफ 3 नंबर ऑफ करेक्टर्स, मतलब 3 नंबर्स का है इंस्टीट्यूट कोड. तो इसने नेक्स्ट जो 3 करेक्टर्स है उन्हीं को पिक किया है. क्लियर? एंड इफ यू कैन ड्रैग इट यू विल गेट द इंस्टीट्यूट कोड. अभी तो बाय चांस इसमें 147 ही आ रहा है, बट इफ यू हैव अ मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स तो आपको इंस्टीट्यूट कोड डिफर दिखेंगे. जैसे इफ लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी सर्चिंग फॉर द टॉप रैंकर्स, तो यूनिवर्सिटी के पास तो देयर आर n नंबर ऑफ कॉलेजेस, सो दे विल गेट अ डिफरेंट कोड. तब ये फंक्शंस बहुत यूज होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ईयर फंक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज लेंथ. लेंथ पे देखना आप. लेंथ का मतलब क्या है,
कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं. सो इज इक्वल्स टू LEN. सो आई वांट टू सी दिस कि इसमें मिस में कितने करेक्ट, सॉरी, लेंथ ब्रैकेट. सो आई वांट टू सी इसमें कितने करेक्टर्स हैं and click OK. So it is showing me 5 characters. Now see, miss में इसने मुझे कितने number of characters बताए हैं? 5. So it is considering the special characters also, like dot, at the rate, percentage, bracket, hash, हाइफन, ये सारे को रीड करता है. लेंथ फंक्शन स्पेस को भी रीड करेगा. देखो चलो मैं अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें. ब्रैकेट स्पेस ब्रैकेट. सो अकॉर्डिंग टू यू कितने करेक्टर्स हैं इसमें? यस, कितने करेक्टर्स लग रहे हैं? 3. ब्रैकेट तो 2 ही दिख रहे हैं, तो तुम्हें देखने में क्या पता चलेगा कि 2 करेक्टर्स हैं, बट ये स्पेस को भी रीड करता है. सो लेंथ इज 3. इट मींस दिस कंटेन्स 3 करेक्टर्स. जो भी हैं आपके 3 करेक्टर्स, ये सबको, सब स्पेशल करेक्टर्स को, स्पेस को, सबको कंसीडर करेगा ये. क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? अब आते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो पे, जहां तुम इनको यूज करोगे वहां देखते हैं. अब तुम लोगों को दिमाग अब पता चलेगा कहां कहां यूज होगा ये. यस, आई होप माई स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल. यस, विजिबल? Yes, ma'am. ठीक है. दिस इज द डेटा दैट आई हैव. ये मेरे पास है बच्चों के आई कार्ड की इंफॉर्मेशन का डेटा, कि जो बच्चों ने अपने आई कार्ड में इंफॉर्मेशन दी है, गूगल फॉर्म से मैंने फिल कराया और मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली. ठीक है, जिसमें मेरे पास है बच्चों के, और ये वही एक्सेल शीट है. ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, एनरोलमेंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, ऑफिशियल ईमेल आईडी, आधार, फादर नेम, मदर नेम एंड एवरीथिंग. अब जब इस शीट को मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ ना, सो व्हाट आई फाउंड इज कि इन द स्टूडेंट नेम, लाइक लुक एट दिस भूमि जैन. भूमि जैन ने अपना नाम किसमें लिखा है? अपर केस में? यस और नो? Yes, ma'am. अब जय बेनीवाल पे आओ. जय ने जय का जे तो कैपिटल लिख दिया, बेनीवाल का बी छोटा लिख दिया. लिख दिया ना? इसी तरीके से गर्व गुप्ता ने गर्व का जे बड़ा लिख दिया, पर गुप्ता जी ने गुप्ता का जे छोटा लिख दिया, जी छोटा लिख दिया. अब ऐसे ही मेरे पास ये बहुत लंबी शीट है. क्या करूं मैं इसको? मुझे इसको सारी चीजों को एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है. मतलब मुझे नामों में ऐसा नहीं रखना ना कि जैसे भूमि जैन ने कैपिटल में लिख दिया, प्रखर ने ऑटोमेटिकली प्रॉपर केस में लिखा है. सो व्हाट फंक्शन शुड आई यूज? क्या Proper. यूज करूं? यस, Proper. प्रॉपर फंक्शन. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ, लेट्स से इट्स अ क्लीन डेटा. कैसे करूंगी मैं? एक कॉलम मैंने लेट सपोज इंसर्ट किया. यहाँ इंसर्ट, व्हाट आई विल डू इज आई विल फॉलो द प्रॉपर केस. सो आई विल फॉलो प्रॉपर, सेलेक्ट दिस, क्लिक ओके एंड यू विल सी. और मैं इसको कर दूंगी ड्रैग. तो मेरे पास 116 बच्चों का डेटा है, सबका नाम देखो प्रॉपर केस में आ गया. यस, विजिबल हो गया? प्रॉब्लम सॉर्टेड. अदरवाइज एक एक बच्चे को देखो, भूमि जैन ने अब कैप्स लॉक में लिखा हुआ था, भूमि जैन का प्रॉपर केस में आ गया. यस और नो? यस गाइस, यस और नो? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं. अब ये बच्चों ने एनरोलमेंट नंबर लिखे, प्रोग्राम शिफ्ट, नाउ मूव टू दिस मोबाइल नंबर. इस मोबाइल नंबर वाली फील्ड को ध्यान से देखो. इस मोबाइल नंबर वाली फील्ड में कुछ ई में भी आ रहे हैं करेक्टर्स. तो चलो इसको पहले मैं नंबर में कन्वर्ट करके तुम्हें दिखाती हूँ. इसको मैंने कन्वर्ट किया नंबर्स में और इसके रेशियोज हटा दिए. नाउ सी, अब ध्यान से देखो, कुछ कुछ बच्चों ने अपने मोबाइल नंबर के आगे 91 ऐड किया है. दिख रहा है? ये स्टार्टिंग के 2 इन्होंने 91 ऐड किया हुआ है. यहाँ पर 91 ऐड किया हुआ है. एक बच्चे ने तो अपने मोबाइल, ये नंबर ही कुछ बड़ा सा दिख रहा है. सो व्हाट यू विल सी कि मुझे ये देखना है कि ये मोबाइल नंबर में किसने कितने, मतलब किसने 91 डाला हुआ है, या
किसने 11 डिजिट का मोबाइल डाल दिया, गलती से कोई एक्स्ट्रा डिजिट प्रेस हो गया? यस, विच फंक्शन शुड आई यूज? लेंथ। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इस सिनेरियो में मैं क्या यूज करूंगी? मैं लेंथ देखूंगी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फंक्शन, इसमें जो मोबाइल नंबर है 10 से ज्यादा करेक्टर का है। ठीक है, तो मैं अब एक कॉलम और इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट कॉलम and I will see length function, len, and I will select this cell and click OK. Sorry, left function लग गया गलती से, len। आप लोगों के पास शीट नहीं है, बट ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि है क्या ये। Now see, so it is showing me 10। चलो यहाँ पर मेरे पास लेंथ भी आ गई, बट अब पहचानू कैसे? सो आई विल, what I will do is I'll put the filter। मैं फिल्टर लगा के देखती हूँ। I want to see the cell having value greater than 10। देखो मेरे पास ये सारे सेल आ गए। ये सारे सेल क्या बता रहे हैं कि इनमें जो वैल्यू है वो 10 से ज्यादा है। इनको मैं नंबर में कन्वर्ट करती हूँ। चलो अब मुझे पता चल गया, मतलब इन बच्चों ने अपने मोबाइल नंबर के आगे 91 लगाया हुआ है या किसी ने मोबाइल नंबर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चों ने 91 लगाया है, सो आई विल मैनुअली रिप्लेस इट। गॉट माई पॉइंट? अदरवाइज तो 116 बच्चों का मैं बैठकर देखूंगी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? ये चीजें समझ आनी बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस एक्चुअल थिंग, कि कहां कब क्या चीज यूज करनी है आपको पता होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, now quickly see the official email ID. This. Now see this official email ID. अब ऑफिशियल ईमेल आईडी वाले कॉलम को ध्यान से देखो। प्रखर ने अपनी ईमेल आईडी में पी कैपिटल लिखा हुआ है, दिखा आपको? नीचे दक्ष मलिक ने अपने ईमेल आईडी में डी कैपिटल लिखा हुआ है। एंड ईमेल आईडी शुड बी इन लोअर। लोअर केस, इट इज मैंडेटरी। ईमेल आईडी तो हमेशा लोअर केस में होती है, तो क्या करूं? एक एक बच्चे को मैनुअली ठीक करूं जाके? यस गाइस, क्या करूं? यूज लोअर फंक्शन। Yes, use lower function, as simple. So what I will do is I will insert the one column and enter the lower function. Oh, sorry, cell select करना है instead of range. So keep in mind, देखा कि मैं सेल की बजाय रेंज सेलेक्ट कर रही थी। ठीक है, अब देखो प्रखर की ईमेल आईडी लोअर केस में आ गई, एंड आई विल सिंपली ड्रैग इट। गॉट माय पॉइंट? Yes, clear? Okay, next see this thing. If I move to the father's name, this is the father's name. Now see, some of the student mention Mr. before the father name and some it write it normally. कुछ बच्चों ने ऐसे ही लिख दिया और कुछ बच्चों ने मिस्टर ऐड किया है। दिख रहा है आपको? मेरी बात समझ आ रही है? Yes. एंड आई वॉन्ट मिस्टर इन फ्रंट ऑफ द नेम। मुझे सबके फादर के नाम के आगे मिस्टर चाहिए। ठीक है, देखो जैसे कुछ बच्चों ने मिस्टर खुद से ऐड करा है, कुछ बच्चों ने मिस्टर खुद से ऐड नहीं किया है। सिमिलरली विद द मदर्स नेम, कुछ बच्चों ने मिसेज ऐड किया है, कुछ बच्चों ने मिसेज ऐड नहीं किया है। नाउ व्हाट आई वांट कि फादर और मदर के नेम के आगे मिस्टर और मिसेज ऐड हो जाए। सो व्हाट आई कैन डू? Can anybody write it in the chat box? Which formula can I use? Concatenate. Okay, very good. Concatenate. How? कैसे यूज करूं वो तो मुझे पता चल गया, that you people will guess. बट फॉर्मूला यूज कैसे करना है मुझे वो लिख कर बताओ। मुझे फादर का नाम दिख रहा है बच्चों के, बट आई वॉन्ट कि मिस्टर ऐड हो जाए। मेरे पास कोई इनिशियल का कॉलम तो है नहीं कि मैं मर्ज कर दूं।
जैसे उसमें तो हमारे पास इनिशियल्स थे. यस, कैन एनीबडी राइट इट इन द चैट बॉक्स और कैन टेल ओरली? उसी कॉलम में मिस्टर ले लीजिए और फिर उसको फिक्स कर दीजिए प्लीज. क्या करेंगे हम? लिखेंगे कंकैटिनेट एन. डबल हाँ जी. डबल कन, ब्रेस में हाँ, इन्वर्टेड कॉमास में मिस्टर, इंटरनेट inverted commas close, comma, I want space between Mr. and father's name, so I will add inverted comma space, inverted comma close, comma, this father name and close, enter. Yes, I hope the screen is visible and you people are getting what I did. Yes or no? How many of you got this point? Raise your hand quickly. कितनों को मेरी ये बात समझ आ गई है? मिस्टर मैंने खुद से ऐड किया. इस केस में मुझे पता था कि दैट फादर नेम के आगे मिस्टर फिट होगा, तो मैंने मिस्टर खुद से ऐड कर दिया. व्हाट अबाउट अदर्स? द रेस्ट आर इन द मीटिंग जस्ट फॉर द सेक कि बस आ गए हैं जी ऐड ऑन अटेंड करने. क्लियर? सो आई विल ऐड मिस्टर, देन आई वांट अ स्पेस, सो प्लीज क्लियरली मेंशन द स्पेस. इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेस जरूर लिखो and add the father name and I'll simply drag it. अब आपको ना एक चीज और मैनुअली जाके चेक करना होगा कि किस बच्चे ने मिस्टर पहले से ऐड किया हुआ था, तो आपको मैनुअली उसके फादर के नाम से के आगे से मिस्टर दोबारा से हटाना होगा, विच इज द इजीएस्ट टास्क आई बिलीव, इंस्टेड ऑफ एडिंग मिस्टर मिस्टर मिस्टर. नाउ मिसेस. चलो अब मुझे मदर्स के नेम के आगे ऐड करना है. कैसे करूं? यस, आई वॉन्ट कि मदर के नाम के आगे मिसेज ऐड हो जाए. हाउ? क्विकली मुझे बताओ कैसे ओरली. यस प्लीज अनम्यूट. आयुषी, अंकुर बोलेंगे नहीं, सुन लेंगे. बोलो. कंकैटिनेट inverted commas Mrs. inverted comma close, comma, inverted comma open space, inverted comma close, comma, name of the mother and click OK. Now see. So mother के नाम में आपको दिख गया कि मिसेस ऐड हो गया है. यस, क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. So in this way you can use the formula. कि ये आपको पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला को कहां पर किस तरीके से यूज कर सकते हैं. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. जैसे अब अगर इसी रॉ शीट में मैं आपको एड्रेस दिखाऊं बच्चों के, तो एड्रेस में आप क्या देखेंगे? दैट एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट इज इन नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट. सी दिस कॉलम. ये देखो एड्रेस वाला कॉलम देखो, तो आपको फरीदाबाद का F छोटा दिख रहा है, हरियाणा का H छोटा दिख रहा है, सोनीपत का S छोटा दिख रहा है. सो विच फंक्शन शुड यू गो फॉर? एड्रेस को ठीक करने के लिए प्रॉपर फंक्शन यू कैन यूज. सो इन दिस वे यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन कि क्या है, कि किस तरीके से. जैसे अब इसी में आप इनरोलमेंट नंबर से आई वांट टू सी दी इंस्टीट्यूट कोड. जैसे अगर इस बच्चे के इनरोलमेंट नंबर से इंस्टीट्यूट कोड निकालू तो 611 आएगा, which is our institution code for the second shift. और फर्स्ट शिफ्ट को देखने से देखो क्या आएगा? 147. इस तरीके से आपका जो करेक्टर है वो बदलते रहेंगे. ठीक है? यस और नो? Yes guys, I hope the things are clear to you, how you can apply the starts function and the text functions. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And I believe that you people will use these function when you need it. Smart work से हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क मैटर्स. ऐसा नहीं है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा मेहनत से की जाएगी वही अच्छी होगी, बिल्कुल भी नहीं है. Smart work is also important. And tell me which, please don't leave the meeting. And tell me the accuracy. Accuracy is more in the hard work or in the smart work? एक्यूरेसी किसमें होगी कि तुम एक एक में जाकर मिस्टर ऐड करो, या एक्यूरेसी उसमें ज्यादा होगी जहां तुमने फॉर्मूला फिट किया है?
यस, खुद सोच के बताओ। एक्यूरेसी इज मोर इन द स्मार्ट वर्क, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। फॉर्मूला कभी गलत रिजल्ट दे सकता है? यू विल टेल मी। हाँ, फॉर्मूला कभी गलत रिजल्ट नहीं देगा आपको। और जबकि आप खुद से मैनुअली कर रहे होगे तब आपको पता है माइट भी कोई स्पेस रह जाए, माइट भी कुछ टाइपिंग एरर हो जाए, सो यू कैन गो विद द formulas and the accuracy is also very higher. Yes or no? एक second, please don't leave the meeting. Any doubt? Yes guys, any doubt? पहले कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। Yes, any doubt? The topic that we did, इसमें किसी को कोई डाउट है? Okay, so I believe the things are pretty much clear to you and you people will submit your assignment on time. ठीक है, ये वाला असाइनमेंट भी जो भी एक्सेल शीट मैंने आपको दिखाई थी दैट आई विल बी शोइंग यू अगेन, दैट आई विल शेयर विद यू, एंड प्लीज do the assignment and it will hardly take 10 to 20 minutes, maximum 10 to 20 minutes. Clear? Okay, thank you all, thank you so much, and please submit the feedback also. I'll be sharing the link. Bye bye, good day.